डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 57 दैट डे। एपिसोड बिल्कुल उस मिडनाइट सन जैसे चालू है। मूवी टू वर्मिन डेविल ब्लड्स। Have you come to see the airship too? はい。レベル持ってません。制裁か。制裁を。 तो मजदूर बना देंगे या फिर मारेंगे? ओह यार, 腕章を外して एक मिनट, अगर आर्मेंट नहीं है उनके हाथ में तो उनको वापस पैराडाइज भेज देंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? 妹は翌日川で発見された。 ओह 手前までだ。仕事が忙しくいることが分かった。彼らは仕事をサボって河原で寝てたのだ。忙しかったわけがない。母は悲しみにございま Thank you す。 so much for your guidance. 不 ओह 足には教育し直しておきますので。この男たちにへりくだった憎しみを覚え、それ以上に自分の I 愚か cursed さ my own foolishness. I 10年前、我々の祖先ユミル・フリッツは入れる。ユミルは死後も9つの巨人に upon our 魂 death, を分 Yami's け、 spirit was エ split ル into ディア 9帝国を titans. 築いた。 Nation of Marley, the そ rule こ over か the らは continent. 暗黒の時代だ。ユミルの民は मतलब हुकूमत करते थे एलियंस लोग। 多民族に無理やり子を産ませ、ユミルの民を Children to 民族 increase the 長から numbers. 約1700年 Nation of Marley 成長を極めたエルデ plotted ィア to に subvert 内 Eldia 部 and its 工作を挑 arrogance み、さ from らに India. は The Eldian king at the time 30 erected 3 walls on the islands of 共 Cuba. に अच्छा, ये पैराडाइज आइलैंड है मतलब, और ये मार्ली। ओह 我々の祖先は見捨てられ、娘を失った直後の父親にしては饒舌だった。ご主人様の言いつけを守り、 हाँ, इसको अपनी चिंता भी नहीं है कि इसकी बेटी मर गई है। とついてた。何か都合の悪いことがあるから嘘をついた。 यार उसने झूठ बोला था वो। この建物 Wait is the one who took 黙 Faye and れ。ジョーカーを、俺もフェイもそんなことしてない。街を歩いただけだ。来たいのか。 एक मिनट, इनको पैराडाइज वापस भेजा जा सकता है? चले क्यों नहीं जाते हैं? 加害者でなくても収容区でただをフェイと同じ目に合わせないでく Please れ。 don't lead us all the same fate as Faye. 間違ってい कौन सही है यार, कौन गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 楽は両方だろ दोनों ही गलत है, दोनों ही う。 पार्टी 私は सही। 無知で愚 The か。 world is irrational and insane. 私が落ちていた頃だった。この切り傷はどこに The 殺され sister was killed by a man in public 我々には security. 政府の内通者がいます。詳しい話をお聞かせしましょう。こんなことが。妹の事件の真相を知ったとき、 एक मिनट, 本当の悪魔はどちらか教えてやる。世 सही करा यार पूर्वजों ने भाई. エルディアを復活させなくてはならない。 In order to correct the world, Eldia would have マ to ーレ be 政 restored 府の内 again. 通者は他を見せることなく復権派を मतलब 導く。 किसी आउल बंदे ने गवर्नमेंट की चीज इन लोगों को बताई. これが真実だ。 ये अमीर इनकी पूर्वज थी जिनने पैराडाइज आइलैंड में सब चीजें बनवाई. 人々を豊かにし、俺は始祖ユミルを I 信じ know てい it る。 because I believe 俺 in たちは our 選ばれ founder し神の Yamir. 子。 The owl sent us somebody. 皆さんはじめまして。私はダイナ・フリッツと申します。 Dinah 王家の Fritz. 血を引く者です。 I am descendant of the royal family. She was the last descendant of royal blood who remained in the continent. 王家だけが持つ巨人の अच्छा 情報 मतलब を ये मार्ली में बची हुई थी 復権 एक 派にもたらした रॉयल ब्लड की आखिरी. それは無法を復権派にもたらした。 ये बूढ़ा और गंजा इंसान मैंने कहीं देखा है यार. 他に持ち去った始祖の巨人。これさえ手にすれば King took the 他の founding 巨 titan 人 within 全 the てを支配 walls. し हाँ यार, उसके पास इतनी ताकतवर पावर थी तो किंग आइलैंड पैराडाइज पे क्यों भाग गया? 戦うこと。 मतलब किंग लड़ने की जगह वापस पैराडाइज भाग गया. पहले उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर थी. Restore the pride of Eldia. तो वापस एल्डिया की हुकूमत लाना चाहता है ये. 名はジーク。 Oh! 王家の血を引く子だ。時代は移り、人は変わる。世の中が急速に発 聞けエルディア人 Somalian warriors. 争奪の時代に
いち早く対応するための力が絶対でなくなる日は近い。莫大な化石地上の全て लाखों を टाइटनों निकल जाएंगे दुनिया खत्म करने और दुनिया को चपटी कर देंगे। うちは感することで मतलब इनको फाउंडिंग टाइटन की पावर माले मिलिट्री पुलिस से पहले लेनी पड़ेगी। いや Have my son Zeke マーレの戦士にするのだ。 become a Marlian warrior। お前は誰よりも分かった यार यार पर जीक इतना खराब इंसान कैसे बन गया? इसने एलिया पे अटैक कर दिया। 祖母の安全を選んだ。愚かな両親を क्यों? 楽園 ओ भाई, this is where you will serve your life sentence as a pure titan। 答えろ、フクロウは誰だ。 यार इतने बुरे थे यार, मार लिए। 忘れるものか。 ओह ये तो वही इंसान है उसकी बहन मरने के बाद। ओ なんでジークが俺たちを密告するんだ。お前の息子だろ。 मेरे को ही समझ नहीं आ रहा जीक ने क्यों धोखा दे दिया इनको। 復権派もダイナもなんとか言えよ。 भाई यार 自由だ。 The Titans were about to make あいつに惹か to れ chase て him さ down す and がに leave な the くな area る。まあすぐに食う。 妹を殺した当局の男。 भाई यही वो बंदा है जिसने इसकी बहन को मारा था। वही सिरिंज है यार। देखो ये बूढ़ा फिर से। ओ एक मिनट, और इसने तो एरन को ओ भाई यार ये म्यूजिक ये सीजन 1 वाला। यार मेरे को ग्रिशा एगर का वॉइस एक्टर क्या है यार ये। वाओ ग्रिशा एगर वॉइस एक्टर, मैन यू आर लेजेंड। うるさくてかな。 ओ एक मिनट, ओ भाई 体は大きな。グリシャ私はどんな姿になる यार अगर ये टाइटन बनी ना। मास्टरपीस। 落ち着いて見たのエレン यार मिकासा के ये बाल बड़े सही लग रहे हैं। じわって言った एरन बिल्कुल ग्रिशा की याद दिला रहा है 泣いて यार। いてるのエレン 記憶だ。 मेमोरीज से जागा है वो। 巨人。お前だ。 That Titan, it was you, Dina। 見ろ、お前には目もくれずグライス君を追ってるぞ。本当は5年前 मतलब ग्रिशा की पहली बीवी ने उसकी दूसरी बीवी को खा लिया। 追ってろ。了解です。そいつに踊って Let's もら have う the ぞ。 lad dance for us. なんでこんなこと。 People getting eaten by Titans. यार ये मार्लियन कितने बुरे यार। どうかしてると思う Because it's か。 interesting. でも人はざ足りんのだろうな。生の実感ってやつか。思考なのだよ。俺 यार क्या तू जीने मरने की फिलॉसफी बता रहा है भग। たちの犬に食わせたのも It was educational having my son's dog eat your sister. 心は痛まないのか。つけられる。かわいそうに。 You poor things. エルディア और 人 इतनी で गुस्सा आ さ रही ना え इस पे. 巨大な化け物になる。お前らエルディア人をこの世か The ら world needs to wipe out every last one of you Eldians. You are the murderers 俺たち here. マーレに何をしようとした。嘘だ。俺は真実を知っている。始祖ユミルは大陸の人々を豊かで。なあ History is so grand. Go and share it with your friend down below. Sister is calling for you. इसको इतना मारना चाहिए ना ये मोटे को. एक मिनट. कोई तो ऑफिसर था जो रेस्टोरेशनिस्ट को इन्फॉर्मेशन बताता था सोल्जर्स के बीच में रह के. वो आउल था. あんた आउल है ये आउल है. आओ भाई. भाई इसके पास अटैक टाइटन भी है.
भाई ये क्रूगर 当局の兵士は得られた。 ये क्रूगर टाइटन कितना बड़ा है यार। 海とは अटैक ऑन टाइटन में समुंदर। एपिसोड 58 अटैक टाइटन। यार अटैक ऑन टाइटन ऐसा शो है जिसके अंदर नॉर्मल चीज़ देखना बहुत आश्चर्य वाली बात है, जैसे कि समुंदर। フクロウ、あんたは何者だ。俺はエレン・クルーガー。 ओह 見せた通りユミルの民だ。 आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ यमी जस्ट लाइक यू। मतलब पैराडाइज का एक क्रूगर एरन। 当局に潜入したのか。 भाई ये घात ला के आया है मालवी मिलिट्री में। 医者どこだった。なのに姿のままここに。 बस ग्रिशा बचा है जिंदा, बाकी सब तो गए। ब्रो ये क्रूगर कितना ऊंचा है? 7 फीट। だけ生かした。妖精指が人の指をちょん切るのは気にならないらしいが。 हाँ इसने पहले क्यों नहीं मदद करी क्रूगर ने? されたんだ。同胞だけじゃない。 एक मिनट, इसने कई लोगों को टाइटन बनाया है एलिया के। 全てはエルディア ये सब कुछ वो एलिया के लिए कर रहा है। 他の誰かではなく अभी ग्रिशा को कौन सा टास्क करने का बोल रहा है? आखिरी वाला। 敵国父親自分お前の目に映る像 हाँ यार ग्रिशा की आंखों में नफरत थी 俺 बहुत। もそうだった。 क्रूगर भी पहले ग्रिशा जैसा था, उसके पिता ने 成し遂げることなく क्रांति चालू करी, 枯れた。 पर वो सब हार गए मार्ली वालों के そ सामने। の様子を戸棚のとだ。それに徹した結果今日まで勝 अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा सिर्फ देखने के बजाय।敵内に潜入し It's to infiltrate the walls and retake the founding titan. 俺から巨人を継承前に加え I'll be eaten by you as a titan. 同じようにして始祖の巨人 हाँ यार ये क्यों नहीं फाउंडिंग टाइटन लेने जा रहा है? 9つの क्रूगर 巨 ही। 人の力称したのも13年前になる。フクロウはそれを。 यमीर के श्राप की वजह से 13 साल जी सकते हैं टाइटन वाले लोग। 何かの間違い एरन बस 8 साल में मरने वाला है और आर्मिन 13 साल में। がってる。 ここの यार इतनी सारी मिस्ट्री खुल रही है ना, सब यमीर के सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है किसी तरीके से। तो अगर वो बच्चा पैदा करे तो भी वो पावर बच्चों में आ सकती है। 道を見たと言っ वन इनहेरिटर सेड 巨 दिस 人 सॉ を形成する पाथ्स। 血や骨。 ये पाथ्स टाइटन वाले लोग देख सकते हैं, और ये पाथ से ही मेमोरी एक से दूसरी जगह जाती है। つまり मतलब सब एक जगह पे आते हैं ये सब मेमोरीज और विचार। वही फाउंडिंग टाइटन है। その座標へと尽くした少女そう唱える者もいる。 The only truth in this world is that there is no truth. किसी को नहीं पता है अमीर को पावर कैसे मिली 神で है も悪魔に टाइटन でも वाले। なれる悪魔にでもなれる。アイナは王家の血を引く者 Anyone だ。 can become god or evil. それも 残念なことにダイナが王家の血を引くのは事実だ。 ではなぜ見捨てた。 अगर वो मार्ली में रहती तो उससे सिर्फ बच्चे पैदा कराते डीना से। 俺は務めを वो जीक तो सब बता देगा यार उनको कि फाउंडिंग टाइटन के लिए रॉयल ब्लड चाहिए और अटैक टाइटन। とは思えない。 आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर द जॉब। अबे हाँ यार ग्रिशा ने तो सही में कर डाला। If I had known this was the price of freedom I wouldn't have paid it। ग्रिशा अपने लोगों को जा चाहता था अपने मकसद से। 戦え ततकाए। 俺に憎しみを思い हैवी 出さ नो せようと बॉल しても मार्ली वालों ने नसबंदी कर दी। あの日お前が क्रूगर ने ग्रिशा को इसलिए चुना क्योंकि ग्रिशा ने हिम्मत दिखाई वॉल्स के बाहर जाने की। いずれ父親の診療お前は壁の外に出た。俺はここでからその行いが報われ We る must 日ま push で forward until the price of our action is paid। 死 कुछ んで रिजल्ट तो होना चाहिए आज के सब कर्मों का। हाँ मतलब अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी ग्रिशा एगर ने चालू करी है। 9つの巨いついかなる時代においても自由を भाई यार केट सेडीज 進み続け आजादी के लिए ततकाई करो। 名は進撃の巨人。でもまあそれは एरन ने लिटरली शो का नाम लिया। なんで誰もいないのに一人で喋っていたの？なんだよそういう時期って पर एरन सच जान के बहुत दुखी है। 何しに来たんですか。俺こそ示しがつきませんってね。加えて君たち हाँ मिकासा कैसी हो गई है? 身支度を急げ。何をするんです。謁見だ。女王陛下がとろ हिस्टोरी ऑफ मेजेस्ट्री 親愛 है। なるヒストリアへ。今私の隣には यार मैं ये वाली यमीर को भूल गया था वो ग्रैंड यमीर के सामने। だが愛したいのだと。あの時はすまない。
でも後悔はしてない。 ओ यमीर भी तो 13 साल में मरा। ओ यमीर तो 正直ここにできてないことだ。ユミルより यार मेरे को लेस्बियन में इतना इंटरेस्ट नहीं है पर यमीर मेरे को पसंद है। その道は全て一つの座標で交わる。 ऑल द पाथ क्रॉस एट सिंगल कोड। ये तो एरन की आवाज है। 何 यार यमीर को भी वो फ्रेडा के जैसे किसी और को खिला लिया होगा। 二人はできなかっただろうけど、そんなことはしてないと思う。バカだな。 एरन जैसे रो रही है। 陛下。陛下。やめてよ。まだおい。生きてることは大事な務めだよ。ああ、そうだ。みんなが思ったより。 यार साशा यमीर के बाद अब साशा मेरे को लग रही है। の知り得る歴史のすべて、壁外世界の情報、変化だ。本日は女王の御前で今一度終わりたい。 हिस्टोरिया सब अलाउ कर सकती है। 半地蔵 वॉल मारिया सही कर दी, कोलोसल टाइटन मिल गया और बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिल गई। मतलब दुश्मन टाइटन नहीं で है, あり、言うなればそれは言っちまえば世界です。 पूरी दुनिया है। एक तरफ पैराडाइज इतना छोटा सा आइलैंड है और दूसरी तरफ उनके खिलाफ पूरी दुनिया है। エルディア人は終わりだ。 बस फाउंडिंग टाइटन की पावर है जो बचा そん सकती なことの王は戦わない。我々は अगर एल्डियन ने फिर से कुछ गलत करा तो सारे एल्डियन मर 我は जाएंगे। 始祖の巨人 तो と इसलिए 千の किंग 地 ने 理を शपथ ले ली फाउंडिंग टाइटन के साथ कभी वॉर नहीं 大 करेगा। 陸の王ある間 दुनिया に चपटा करने वाली वो の बात 平和 वो を बस एक धमकी थी। 享受するらしい कौन था ये किंग? बड़ा बेकार टाइप का इंसान लग रहा है। मेमोरी भी ले ली और सब लोगों को बोल दिया कि बाहर कोई नहीं रहता है वॉल के। तो अभी से ये वो した王 बहुत から始 फिसड्डी 祖 किंग の लग 巨 रहा 人を है। 取り上げろ。始祖の巨人が बस एरन को रॉयल ब्लड चाहिए। फाउंडिंग टाइटन अटैक टाइटन है उसके पास। その者が始祖の巨人を宿しても壁の王の यार 子孫に फ्रेडा 囚われ किंग 窮地を逃れた की वो शपथ का मतलब यही है कि चाह कर भी लड़ाई नहीं करा सकते फाउंडिंग टाइटन से। その पर एरन ने तो पावर यूज करी थी सब टाइटन से अटैक करवाने के लिए डीना पे। 気がした。血を引くものです。 ओह, डीना रॉयल ब्लड की थी इसलिए पावर यूज कर पाया। のことは二人にも話していない。母さんとハンネスさんを殺した相手だったなんて。 यार एरन को ही पता है उसके बाप की 2 बीवी। かもしれない。そうだ。かもしれないだ。 भूल गए कि फाउंडिंग टाइटन के साथ रॉयल ब्लड चाहिए पर इनको याद आ गया तो हिस्टोरिया का क्या करेंगे? に入ったら初体を持つんだ。 बिल्ड अ 言 फैमिली ってる。俺には survive your 町の child 人 your でもいい。 neighbors if need be love someone inside the walls। いなければ繰り返すだけだ ये जानबूझ के ग्रिशा को बोल रहा है कि इससे प्यार करो शादी करो एलिया जाके 何度もミカサやアルミン टू सेव मिकासो みん आर्मी। なをなら使命を全うしろ。ミカサアルミン誰のことだ मेमोरीज आर दूर। मेरे को इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बोलनी है। सबसे पहले तो वो ग्रिशा उसकी बहन को इतनी दर्दनाक तरीके से मारा भाई। तभी तो बोली मैंने ग्रिशा की कभी बहन को क्यों नहीं देखा, अगर उसकी बहन थी तो कुत्तों को खिला दिया। यार मतलब मार्ली के अंदर कितनी नफरत है, कितना गुस्सा है एलियंस मतलब पैराडाइज के लिए, उन लोगों के लिए। उस पर सिर्फ इसलिए गुस्सा निकाल दिया क्योंकि वो एक अलग रेस की थी, एक अलग जाति की थी एक तरीके से। क्योंकि ग्रिशा और के बिना परमिट और बिना इजाज़त के आए थे, सिर्फ इसलिए। यार वो ग्रिशा की बहन को कुत्तों को खाने वाला वो सीन बहुत दर्दनाक था ब्रो। और फिर उसके बाद ग्रिशा के पापा बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं एल्डियन के, मतलब हम सब किसी यमीर के लोगों ने, वो हमें सब्जेक्ट्स ऑफ यमीर बोलते हैं और हम भी खुद को यही बोलते हैं। यमीर शायद कोई लड़की है या कोई भगवान है जिसने डेविल से पावर ली थी और वो जब मरी उसके अंदर टाइटन की पावर आ गई, पर जब वो मरी तो उसकी आत्मा 9 टाइटन्स में बढ़ गई और वो 9 टाइटन्स ने एल्डियंस की मदद करी, पैराडाइज वालों की, मतलब अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए। और उन्हें घिनौने से घिनौने काम करे, मतलब जो लोग दिखे मार्ले के या दुनिया के कोई से भी लोग, उन सब से ब्रीडिंग करके
और बच्चे पैदा करे जितने ज़्यादा वो कर सकते थे, और एलियन की प्रजाति बढ़ाने की कोशिश करी। उन्हें रेप करा, उन्हें मर्डर करा, उन्हें हर बुरी चीज़ करी। इसलिए पूरी दुनिया एलियंस से नफ़रत करती है, और मार्ली भी। बल्कि एलियन और पैराडाइज तो एक छोटा सा आइलैंड है, मार्ली उससे 10 गुना बड़ा आइलैंड है यार। तो वो एलियंस ने जितने ही बुरे काम करे वो 9 टाइटन की हेल्प से, वो शायद किंग ने ही, और वो वापस अपने पैराडाइज आइलैंड भी चले गए ये सब काम करके। और जब वो वापस गए पैराडाइज आइलैंड तो कुछ एलियन मार्ली में ही बचे रह गए, और भी शायद अलग दुनिया में भी। और जो बचे रह गए एलियंस मार्ली में, उनको मार्ली वाले अब सताते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक कि एयरमैन नाम का कोई बैज अगर बंधा ना हो उनके हाथ पे एलियंस के, तो मार्ली उनको अपनी जगह से निकाल के डायरेक्ट टाइटन बना के भेज देंगे पैराडाइज पे। एक तरीके से माइनॉरिटी में रहते थे मार्ली के अंदर एलियंस लोग जो बचे हुए थे, जिनको किंग भूल गया था ले जाना या फिर छोड़ के चला गया था। और जो वो किंग है ज़्यादातर लोगों को वो लेके गया पैराडाइज के अंदर अपने घर पे, और वो भी इसलिए लेके गया था क्योंकि ग्रेट टाइटन वॉर में किंग और पैराडाइज के सारे जो टाइटन लोग थे वो हार गए थे मार्ली और दुनिया से। हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से, या उनके पास भी टाइटन पावर आ गई होगी मार्ली और बाकी दुनिया के पास। पर किंग और एलियंस लोग हार गए थे, इसलिए किंग लेके गया वापस, भाग गया। पर किंग और उसके एलियन सिपाहियों के जाने के बाद जो उसकी नफरत छूट गई थी मार्ली पे और दुनिया पे, वो चीज़ कोई भी नहीं भूला पैराडाइज को छोड़ के, कोई भी नहीं, कि किंग ने कितने बुरे काम करवाए, कितने सारे बुरे काम करे, जैसा मैंने अभी बताया। और ग्रिशा की बहन लिटरली पैराडाइज मतलब एलियंस और मार्ली की नफरत के बीच में फंस के मरी है। और जब ग्रिशा आगे जाके जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी बहन के मरने के दुख के बाद, तो वो एक रेस्टोरेशनिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन में चल जाता है, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्ली के खिलाफ एलियंस जो माइनॉरिटी में रह रहे मार्ली में वो लड़ रहे हैं। चुपके से एकदम सीक्रेटली मार्ली के खिलाफ प्लान्स बनाते रहते। तो मतलब मार्ली वाले इतना बुरा बताते यमीर को, वो भले एलियंस की थी, एलियन उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसने इतना बुरा काम करवाया एलियन से ऐसा वैसा, पर यमीर ने तो एक्चुअली पैराडाइज में बिल्डिंग्स बनवाई, रोड बनवाए, हर तरीके की अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करवाई उसने। मतलब कि मार्ली वाले गलत इतिहास पढ़ा रहे थे। और ये अलग हिस्ट्री उनको वो डीना से मिली। वो डीना जो शायद पैराडाइज की थी, वो रॉयल ब्लड है, तो उसके पास बुक थी ये पूरी हिस्ट्री की। उसने ग्रिशा और उसकी पूरी रेस्टोरेशनिस्ट टीम को बताया। ग्रिशा ने एक और चीज़ बताई कि मार्ली को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मार्ली को सामग्री लगेगी हथियार बनाने के लिए और अटैकिंग एयरप्लेन्स बनाने के लिए, बलून्स बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या। और वो रिसोर्सेज कुछ फॉसिल फ्यूल से ही आ सकते हैं, और वो फॉसिल फ्यूल्स पैराडाइज में है। फॉसिल फ्यूल से उनको सिर्फ पैराडाइज को नहीं हराना, उनको पूरी दुनिया पे डोमिनेट करना है। वैसे वो पहले से ही है, ग्रिशा के टाइम से ही वो थी मार्ली, पर उनको और होना है, उनको और ज़्यादा ताकतवर होना है, तो उनको फॉसिल फ्यूल्स चाहिए पैराडाइज से। पर वो डायरेक्ट जाके ले नहीं सकते, उन्हें पैराडाइज से लड़ना ही पड़ेगा। तो उनको फाउंडिंग टाइटन की पावर चाहिए फिर मार्ली वालों को। कम से कम ईयर 1750 के पहले ही किंग चला गया था। ज़रूर वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को भी लेके चला गया होगा पैराडाइज के अंदर, इसलिए मार्ली उन पर अटैक करके उनसे फाउंडिंग टाइटन लेना चाहती पैराडाइज वालों से, एलियन से। और वो फाउंडिंग टाइटन और किसी रॉयल ब्लड के इंसान को लेके मिक्स करके मार के खा के पूरी दुनिया पे अटैक करना चाहती और वो डोमिनेंट होना चाहती। तो वही ग्रिशा को चीज़ लगी, इसलिए उसने सोचा रॉयल ब्लड तो है हमारे पास डीना, किसी भी तरीके से वो पावर लेनी पड़ेगी। पर वो ना मार्ली के बाहर जा सकते थे इतनी आसानी से, मतलब कुछ भी आसान नहीं था। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मार्ली को रिसोर्सेज चाहिए, ये भी किसी आउल नाम के बंदे ने दी थी। फिर ग्रिशा को आइडिया आता है कि ज़ीक कब काम आएगा, उनका बेटा। क्यों धोखा दिया, मतलब क्यों दोस्त, क्यों? जब वो बीस्ट टाइटन बना हुआ अभी के उसके अवतार को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक एलियन है, वो लिटरली दुश्मन लगता है वो। और ग्रिशा को वो क्रूगर बचाता है, एरन क्रूगर। उसकी बात इतनी अलग है, मतलब वो उसके जो पापा थे वो किसी रॉयल ब्लड मेंबर्स वाले ग्रुप में थे। ऐसा ग्रुप था कि वो एलियंस के साथ थे। वो लोग भी मार्ली के जो एलियंस हैं उनको फ्री करना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे, उसमें विश्वास रखते थे वाले रॉयल ब्लड वाले लोग। और उसी में एरन क्रूगर के पापा भी थे। पर जैसा एरन क्रूगर ने बताया, एरन क्रूगर के सामने उसके पापा जल के मारे गए। और फिर ये रेस्टोरेशनिस्ट के ग्रुप को ग्रिशा ने और बाकी कुछ लोगों ने संभाला, डीना ने भी। इससे तो उस एपिसोड 21 में एरन क्रूगर ने कई चीज़ें बताई कि टाइटन शिफ्टर जो टाइटन में बन सकते वो सिर्फ
13 साल तक ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि ymir का एक श्राप है। ymir खुद, वो जब उसके पास टाइटन की पावर आई थी वो 13 साल तक ज़िंदा रही थी और उसका श्राप बन गया एक तरीके से। और उसी एपिसोड 19 में एक और चीज़ बताते हैं कि ये फाउंडिंग टाइटन की पावर है, वो एरन कुगर बताता है। मतलब एरन कुगर ने मिकासा और आर्मिन का नाम लिया, या तो किसी का थॉट आया होगा उसके दिमाग में या फिर किसी की मेमोरीज आई होगी। ये चीज़ मेरे को ढंग से समझ नहीं आ रही है, इसका सिस्टम कैसा है, किस तरीके से काम करता है। अभी तक तो सिर्फ मेमोरीज देखी है आते वक्त, थॉट्स के आते वक्त ये चीज़ समझ नहीं आई मेरे को।